اسلامی کے اعتبار سے مرچا جلا کر نظر بد اتارنا صحیح ہے یا نہیں؟ قضا نمازوں کے ادا کرنے میں کیا ترتیب رکھنا ضروری ہے؟ اگر کسی شخص کی اس کے گھر والے شادی کرنا چاہتے ہوں لیکن وہ منع کرے، ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء احب الی اللہ عز وجل من عمل یداوم علیہ وان قل۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ اور لگاتار انجام دیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث مومنین کے لیے اور جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ انسان جب نوجوان ہوتا ہے، اس کی طینت پاک ہوتی ہے، تو اچھے اعمال کی طرف اور خاص طور سے مستحب اعمال کی طرف بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحب اعمال کو انجام دے۔ مثلا نماز شب پڑھنا شروع کر دیتا ہے، مستحب روزے، شب زنداری، متعدد برنامے ایک ساتھ وہ بنا لیتا ہے، کئی کام ایک ساتھ شروع کر دیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد چونکہ انسان ہے تھک جاتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے مطابق انسان کو 1 یا 2 یا 3 ایسے عمل انجام دینے چاہیے کہ جسے وہ لگاتار انجام دے سکے۔ اصل یہ ہے کہ انسان لگاتار انجام دے، نہ یہ کہ متعدد کام کو انجام دے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسے چھوڑ دے۔ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کم عمل انجام دیں لیکن لگاتار اور مستقل طور سے انجام دیں۔ دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیا اسے ایک بار ایک وقت میں پڑھا جا سکتا ہے یا اسے ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے، یا پھر کبھی ظہر کی، کبھی عصر کی، کبھی صبح کی، کبھی عشاء کی، کیا اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ اور مرحومین کی قضا نماز پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو آج چونکہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، لہذا نماز ہی کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی پیش خدمت ہے۔ جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ امام کی شہادت کا وقت قریب تھا، میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو عورتوں کے درمیان میں آہو بکا کی آوازیں بلند تھیں۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے تمام اہل خانہ کو اپنے پاس جمع کیا اور اس کے بعد سے امام علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس شخص کو نصیب نہیں ہوگی کہ جو نماز ادا کرنے میں سستی اور کاہلی انجام دے۔ اب آئیے اپنے سوال کی طرف۔ تو دیکھیں، اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے کسی عذر کی بنا پہ، کسی مشکل کی بنا پہ، جیسے وہ سو رہا تھا یا جو بھی مشکل تھی، اگر انسان کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس پہ واجب ہے کہ نماز کی قضا کو انجام دے، لیکن فوراً اس نماز کی قضا کو انجام دینا واجب نہیں ہے۔ جہاں تک ترتیب کا سوال ہے تو اس میں 2 طریقے سے انسان اپنی قضا نمازوں کو انجام دے سکتا ہے۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ جیسے خدا نخواستہ کسی کی 1 مہینے کی نماز قضا ہے تو وہ اٹھے اور روزانہ کی نماز کو ذہن میں رکھے، جیسے میں 5ویں دن کی نماز پڑھ رہا ہوں، 6ٹھے دن کی، اس طریقے سے روزانہ کی مہینے کے 1 دن کی نماز ادا کرے۔ تو اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ نماز صبح شروع کرے، اس کے بعد سے نماز ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، پھر عشاء پڑھے، اس طریقے سے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ نہیں، وہ 1 مہینے کی صرف صبح کی نماز ادا کرے، اس کے بعد سے جب 1 مہینے کی صبح کی نماز اس کی ادا ہو جاتی ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے 1 مہینے کی یعنی 30 دن کی 30 عدد نماز ظہر پڑھے گا، پھر نماز عصر پڑھے گا، پھر نماز مغرب، پھر نماز عشاء، اس طریقے سے وہ انجام دے سکتا ہے۔ یعنی یومیہ نماز کی قضا میں ترتیب لازم نہیں ہے، سوائے ان نمازوں کے کہ جس میں ترتیب ہے۔ یعنی ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ ظہر اور عصر کی نماز ہے تو عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لیں، 1 دن کی نماز جب پڑھ لیں تو عصر کی نماز پہلے پڑھ لیں اور ظہر کی نماز بعد میں پڑھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں ترتیب ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں ترتیب ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اکٹھا ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی پڑھی، پھر عشاء کی پڑھی، پھر صبح کی پڑھی، تو اس طریقے سے کسی بھی نماز سے آپ نماز کو شروع کر سکتے ہیں اور کسی پہ بھی ختم کر سکتے ہیں، اس میں ترتیب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کی قضا نماز کو انجام دے، یعنی فرض کریں کہ بڑا بیٹا ہے کہ جو اپنے باپ کی نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی شخص ہے کہ جس نے اجارے کے طور پہ کسی دوسرے کی نماز پڑھنے کی ذمہ داری لی ہے، تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے اس کو بھی انجام دیں گے۔ یعنی 1 مہینے کی اگر نماز ہے تو 30 نماز جو ہے وہ ظہر کی پڑھے، پھر 30 عصر کی پڑھے، پھر 30 مغرب اور عشاء کی، اسی طریقے سے۔ یا پھر وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں، روزانہ کو مد نظر رکھے کہ مثلا آج
5वें दिन की नमाज, आज 6ठे दिन की नमाज है और किसी नमाज से वो शुरू करे, लेकिन उसमें उस दिन की नमाज में जो तरतीब है उसका ख्याल रखे। जैसे जोहर और असर, पहले जोहर पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे, इसी तरीके से पहले मगरिब और उसके बाद से इशा, इसका बरक्स और उल्टा नहीं कर सकता है वो। नाज़रीन कराम, अगर आप सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप खुम्स की रकम के जरिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामेनी हफिज़हुल्लाह दोनों मराजी कराम के खुम्स का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। साथ ही साथ हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों और दीगर मोमिनीन को भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने की दावत दें, ताकि पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़्यादा से ज़्यादा आम हो सके और आप भी उसका सवाब में शरीक हो सकें। अगर कोई शख्स शादी नहीं करना चाहता और उसके घर वाले उसको शादी के लिए मजबूर कर रहे हों क्योंकि उसकी उम्र शादी की हो चुकी है, तो क्या ऐसा करना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सवाल किया है और इस सवाल के कुछ हिस्से हैं, इसमें ये वाज़ेह नहीं है कि सवाल लड़की के लिए है या लड़के के लिए, लेकिन सवाल कुछ इस तरह से है कि एक शख्स ये कह रहा है कि शादी के बगैर भी तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, तो इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। तो नॉर्मल सूरत हाल में लोग इस तरह से नहीं कहते, मगर ये कि उनके साथ कोई इकोनॉमिकल फैक्टर हो, यानी वो अपने आप को फाइनेंशियली इस कंडीशन में ना देखते हो, इसलिए वो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, या उनके साथ कोई फिजिकल इश्यूज हो जो किसी को नहीं पता हो, सिर्फ उसको पता हो कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर मैं करूंगा शादी तो फिर मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आएंगे और लोगों को पता चल जाएगा, या इस तरह के इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से लोग इनकार कर देते हैं। या उनके माजी में उनके साथ या किसी के साथ ऐसे वाकयात पेश आए हैं कि जिसकी वजह से उनके नजदीक उस ऑपोजिट जेंडर के बारे में गलत ख्यालात हैं, नेगेटिव सोच है, तब भी इंसान वो शादी नहीं करना चाहता। वो असल रीजन नहीं बताता बल्कि वो दूसरे रीजन बताकर रहना चाहता है। या फिर एक इंसान जातन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। ऐसे लोग हर माशरे में होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो हो सकता है ये उनमें से हो, क्योंकि दीन ने तो आपको ये बताया कि शादी का मकसद जो है वो सुकून का हासिल करना है, नई नस्ल को आगे बढ़ाना है, सोसाइटी को एक अच्छा फर्द, माशरे को अच्छा फर्द देना है। लेकिन अगर कोई शख्स इस तमाम चीजों को जानने के बाद भी वो तैयार नहीं है, तो फिर ये देखना पड़ता है कि वो क्यों तैयार नहीं है। तो हमने कुछ रीजंस यहाँ बताए, अगर वो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोल्यूशन मिल जाए तो फिर ये शादी के लिए तैयार हो सकते हैं। और अगर वो बिल्कुल ही सब कुछ जानने के बावजूद भी वो नहीं रहना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, तो फिर ये उनकी अपनी चॉइस है, घर वालों को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो वक्त के साथ खुद ही सीख लें तो ये बेहतर। लेकिन साथ में जो बात कही गई है सवाल के कंटिन्यूएशन में, जो बात है वो ये कि माँ बाप उनकी शादी इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनकी एज हो गई है, और माँ बाप भी समझते हैं कि एज क्योंकि हो चुकी है तो बेहतर ये कि उनकी शादी कर दी जाए। लेकिन साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं, और प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि उस जो भी ये शख्स है, लड़का है लड़की, वो उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं है, यानी वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। एक इशू उनका ये, उनके बिहेवियरल इशूज हैं, यानी उनके झगड़े घर वालों से रहते हैं, हर बात पे लड़ाई हो जाती है, बाहर भी लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी के साथ उनकी बनती नहीं है, और वो शख्स ना बच्चों को पसंद करता है ना बच्चों को पालने को पसंद करता है। अब तमाम प्रॉब्लम्स को देखने के बाद घर वाले ये सोच रहे हैं कि इसका सोल्यूशन ये है कि इसकी शादी कर दी जाए फिर ये ठीक हो जाएगा, तो कतई ऐसा नहीं है। दीन ने तो ये मेयार ही नहीं दिया है। दीन ने तो मेयार ये दिया कि एक इंसान से शादी करो कि जो बाखलाक हो, जिसका अकीदा अच्छा हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसकी आदतें अच्छी हो। तो इनमें से कोई क्वालिटीज इनमें भी नजर नहीं आ रही जो दीन ने मेहरा दी, इनमें से कोई मेहरात इनमें मौजूद नहीं है, तो फिर आप इनकी शादी कैसे कर सकती हैं एक ऐसे लड़की से कि जो अच्छे घर से आई हो, अच्छी लड़की हो, उससे इनकी शादी करके उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और इस शख्स की भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये तैयार ही नहीं है अभी शादी के लिए। सिर्फ फिजिकल मेच्योरिटी तो नहीं है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, और एक अच्छे इंसान से शादी करनी चाहिए। अगर आपकी अपनी बेटी होगी तो क्या आप ऐसे शख्स को अपनी बेटी दे देंगे जो इररिस्पॉन्सिबल हो, बदतमीज हो, चिड़चिड़ा मिजाज हो, सबसे लड़ता झगड़ता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हो, तो आप कभी भी अपनी बेटी ऐसे शख्स को नहीं देंगे। तो आप दूसरे की बेटी कैसे दे सकते हैं किसी को? तो इसलिए इस शख्स को खुद ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको समझाने की जरूरत है, इसकी इस्लाह करने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो उसकी काउंसलिंग कराएं, इनको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि इनके लॉक्स अगर लगे हुए हैं वो खुलें और इनके मिसकंसेप्शंस क्लियर हो, और ये जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से देखें और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएं, फिर शादी करें, ताकि वो ये शादी कामयाबी की तरफ जाए। लेकिन ये कहीं से भी कतन ये सोल्यूशन नहीं है कि उनकी शादी कर दी जाए फिर उनकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। आज के दौर में ऐसा सोचना ये जुल्म है उस लड़की के साथ कि जिसको पता ही ना हो कि किससे उसकी शख्स की शादी की जा रही है। तो मैं कतन ये एडवाइस नहीं दूंगा, और माँ बाप को कहूंगा कि अपने बच्चे की इस्लाह करें और उसको एक अच्छा इंसान बनाएं, फिर उसकी शादी करें। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप यही कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं, या आप हमारे दिए गए इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। टीम की पूरी कोशिश ये होती है कि आपके सवालात के जवाबात जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप यही दिए गए हमारी जीमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रहे, हर सूरत में अपने मर्जे वक्त का नाम जरूर लिखें, ताकि उनके फतवे के मुताबिक आपके सवालात के जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाए जा सकें।
सलाम अलैकुम मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि नज़र बद से बचने का इस्लामी तरीका क्या है? क्या लाल मिर्चों के ज़रिए नज़र उतारना सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद और उसके इलाज के हवाले से सवाल किया गया है। फिल जुमला नज़र बद होती है और उसके असरात मुतरत्तिब होते हैं। इसके दलाइल से सरफ नज़र करते हुए इसके इलाज के हवाले से हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे कि दो किस्म का इलाज इसका राइज है। एक वो इलाज है कि जिनका जिक्र कुरान और रवायात में पाया जाता है। इसमें से एक लफ्ज़ इस्तिआज़ा है और इस्तिआज़ा यानी खुदा की पनाह चाहे न कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, यानी मखलूक की तरफ से जो भी इंसान को तकलीफ होती है उसमें इंसान को खालिक की पनाह तलब करना चाहिए। खालिक की पनाह में इंसान चला जाए तो मखलूक के शर से महफूज रह जाएगा। लिहाजा इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बयान की गई हैं, जैसे मुआवज़तैन पढ़ के दम करना, ये नज़र बद के इलाज के लिए बहुत ही मुफीद है। आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना, या सूरह मुबारक वल कलम की 51 नंबर की आयत वयकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, इसका हिर्ज़ या तावीज़ बनाकर पहनना या इसको दम करना, ये एक इलाज का तरीका है। दूसरा तरीका वो है कि जिनको हम टोटका कहते हैं, जैसे मसलन लाल मिर्च सुलगाना या अंडा फोड़ना या इस तरीके के टोटके जो बहरहाल कल बास चीज़ें हमने देखी तो 40-50 तरीके जिक्र किए गए इस तरीके के टोटके। लेकिन हमारे लिए बहरहाल एक सवाल ये होता है कि इनका फ़ायदा होता है, फ़ायदे और नुकसान से क़त्ए नज़र कि हो सकता है कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, इससे बहस नहीं है। लेकिन हमारे लिए अहम यह है कि जब अइम्मा तहार अलैहिस्सलाम ने नज़र बद का जिक्र किया और उसके इलाज के तौर पर मसलन कुरानी और इलाज बयान भी किए हैं, तो फिर हमें उन्हीं चीज़ों से अपना इलाज करना चाहिए। अगर इन चीज़ों की कोई भी शरई हैसियत होती है और शरीयत में ये चीज़ें काबिल कबूल होती तो इमाम तहार अलैहिस्सलाम जिक्र करते, उन्होंने जिक्र नहीं किया। लिहाजा हमारी दीनदारी का तकाजा यह है कि हम वही रास्ता इख्तियार करें जिसको इमाम तहार अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया है, न कि वो रास्ता कि जो लोगों ने खुद बनाया हुआ है। इसराइल के वो प्रोडक्ट जो हमने पहले खरीद रखे हैं उनका क्या हुक्म है? उलमा कुरान की अलामतों के बारे में क्या कहते हैं? नमाज वहशत पढ़ने का कितना तरीका है? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में।